Good morning, all of you. From tomorrow onwards, we are going to discuss our important series, that is Important Judgments of Supreme Court of India. And in this series, we will discuss all those important cases which has impacted the Indian Constitution. We started this series because we have seen that from last a few years, UPSC is continuously asking the questions from the important judgments of Supreme Court of India. So according to the requirement of UPSC, we are going to start this series, and in this series, we are going to discuss first case, that is Ramesh Thapar versus State of Madras case 1950. इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दिस केस हैज बीन डिस्कस्ड a number of times while we are discussing, because we all know that freedom of press is not explicitly mentioned in Indian Constitution. It is considered as Article 19(1)(a) under the part of speech and right to speech and expression. So in this series, we will discuss that how Supreme Court justified the free press in India and the journey which begins from Ramesh Thapar and it is still continue, and in this process repeatedly Supreme Court used the judgment of Ramesh Thapar case from Ramesh Thapar case to Shreya Singhal case. And in Shreya Singhal case, Article 66A of IT Act, Supreme Court rejected this act, Supreme Court denied this act, and Supreme Court declared it as chilling effect on right to speech and expression. And in Ramesh Thapar case, Supreme Court declared free press as the foundation of Constitution, as the foundation of the democratic organization, and as the foundation of the democracy, as the foundation of constitutional structure. So, इस केस में Mr. Ramesh Thapar, who was senior journalist and communist journalist, ये अपना एक न्यूज़पेपर चला रहे थे मद्रास से, क्रॉस रोड्स के नाम से, क्योंकि कम्युनिस्ट थे और इस करके कांग्रेस गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे और इसी प्रोसेस में जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट क्रिटिक थे। कि उस टाइम पर क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, तो मद्रास की कांग्रेस गवर्नमेंट ने रमेश थापर के क्रॉस रोड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया। इनका ये न्यूज़पेपर था जो महाराष्ट्र से पब्लिश होता था और डिस्ट्रीब्यूट और सेल होता था मद्रास के अंदर। तो मद्रास गवर्नमेंट इस न्यूज़पेपर को मद्रास में रिस्ट्रिक्ट कर देती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आर्ग्यू करती है तब भी यही कहती है कि हम लोगों ने इसके रिस्ट्रिक्शंस में सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल रिस्ट्रिक्ट की है। अब इस केस के अंदर मिस्टर रमेश थापर, जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर के बड़े ब्रदर और सीनियर जर्नलिस्ट कर्ण थापर के कजन हैं, ये कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर चला रहे थे क्रॉस रोड्स के नाम से, कांग्रेस का क्रिटिक था ये। 1 मार्च 1950 कांग्रेस गवर्नमेंट बैंड क्रॉस रोड जर्नल यूजिंग मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट। इस एक्ट को यूज करके दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द न्यूज़पेपर। अब इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, दैट इज सेक्शन 9(1)(a। अभी डिस्कस करते हैं इसको। So 1 March 1950 Congress government banned Crossroad Journal using Madras Maintenance of Public Order Act 1949 passed by provincial legislature under Government of India Act 1935। यहाँ पर Government of India Act 1935 it has its own importance। अब मन में क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के कि 1935 का एक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद भी कंटिन्यू क्यों है। यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, पास्ड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पास्ड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट कब का है ये? 1949 में। 1935 के एक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, 1935 के एक्ट को 1949 में ये कंटिन्यू करते हैं। अब सेक्शन है 9(1)(a। बहाना क्या किया जा रहा है? मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। मद्रास गवर्नमेंट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को यूज करके
इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया था अंडर सेक्शन 9(1)(a) मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर. Madras prohibited the newspaper published in Bombay entitled Crossroads and its entry, circulation, sale, distribution in the state of Madras or any part of it. अब मद्रास में इसका सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है. मिस्टर रमेश थापर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं. रमेश थापर मूव्ड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्टिलरी की डिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. He argued that section 9(1)(a) of Madras Maintenance of Public Act उनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है. दैट इज आर्टिकल 19(1)(a), मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है. सो सेक्शन 9(1)(a) मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हेंस वॉइड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन या ऐसा कोई भी एक्ट जो इंडिया के इंडिपेंडेंट हो जाने से पहले बना है, अगर वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, उनको एब्रिज कर रहा है, उस केस में उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट वॉइड करने की अथॉरिटी रखता है. और उमेश थापर ने भी सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि क्योंकि सेक्शन 9(1)(a) मेरे फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत इसको वॉइड कर दो. अब मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना आंसर करता है. उससे पहले हम आर्टिकल 32 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को देख लेते हैं. आर्टिकल 31 क्लॉज 2 कहता है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अगर आपके फंडामेंटल राइट कोई डिनाई कर रहा है, स्टेट डिनाई कर रही है. अब यहां पर ये टर्म स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट वर्ड की डेफिनेशन है और प्रोविजन यही कहता है कि स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकती. तो यहां पर एक्शन कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है, क्योंकि स्टेट के एक्शन से उनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है. सो आर्टिकल 32 की डिमांड के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोई भी इंडिविजुअल या तो हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32. तो यहां पर उमेश थापर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ा और अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. आर्टिकल 32 क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है रिट इशू करने की, और सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट इशू कर सकता है. फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्टिलरी. दीज आर द टाइप्स ऑफ रिट विच सुप्रीम कोर्ट कैन इशू. सो मद्रास गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दैट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2. आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसका मतलब आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन है उसके तहत स्टेट ने एक्शन करते हुए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यूज करते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं. और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत हम लोगों ने इनके न्यूज़पेपर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, सर्कुलेशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है. अब सुप्रीम कोर्ट इनसे क्वेश्चन पूछता है, भाई ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे हुई? मद्रास गवर्नमेंट आप ये बताओ कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी को बोलने से मना कर देना है? तो रीजनेबल तो नहीं हुआ ना. मद्रास गवर्नमेंट लॉजिक ये दे रही है कि हम लोगों ने इनके न्यूज़पेपर को, किसी भी न्यूज़पेपर को पब्लिश होने से मना नहीं किया, हम तो सिर्फ सेल, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है ये तो वायलेशन ही हुई ना फंडामेंटल राइट की. तो अल्टीमेटली मैंने आइडिया सोचा, पब्लिश करके रख दिया, उसके बाद आप जब मैं उस आइडिया को स्प्रेड ही नहीं कर सकता तो वो तो यूजलेस है. अगर उसको अखबार में छाप के मैंने अपने पास रख लेना है तो आइडिया का सर्कुलेशन तो नहीं कर पाया ना मैं अपने. और इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहां पर नंबर ऑफ आइडियोलॉजीज होंगी, है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा. एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ती है. सो आइडियाज रमेश थापर के आइडियाज हो सकते हैं, सरकार उससे डिग्री से एग्री कर सकती है. अब ये जो न्यूज़पेपर लोगों के अंदर जाएगा, लोगों की ये मर्जी है कि वो रमेश थापर के लिखे हुए से इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते. इन नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर टाइप की जजमेंट्स दी हैं.
और उसी के तहत डॉक्टर श्रेया सिंगल केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी यही जजमेंट देता है कि लोगों को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक, अब इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट मद्रास गवर्नमेंट को, यही मद्रास गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट सुनिए क्या कह रही है मद्रास गवर्नमेंट। Madras government argued that security of states comes under the definition of Article 19 and the term state has been defined in Article 12, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। Article 12 के अंदर स्टेट वर्ड की क्लियरली डेफिनेशन Article 12 के अंदर दी गई है। तो स्टेट ऑफ मद्रास ऑल्सो ऑब्जेक्टेड दैट द पिटिशनर यूज Article 32 के पॉइंट ये है कि रमेश थापर साहब ने आर्टिकल 32 यूज किया है इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग हाई कोर्ट। वो पहले हाई कोर्ट आते, इस रूट से सुप्रीम कोर्ट आते तो समझ भी आता, हो सकता हम ही रेमेडी दे देते उनको, पर रमेश थापर साहब सीधा आप तक पहुंचे हैं। तो स्टेट ऑफ मद्रास आल्सो ऑब्जेक्टेड पिटिशनर यूज आर्टिकल 32 अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिलीफ फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट इंस्टेड यूजिंग आर्टिकल 226। तो 226 यूज करने की जगह पर उन्होंने सीधा 32 यूज किया। ये भी उनका एतराज था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। सो व्हाट द जजमेंट वाज, freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas that is ensured in freedom of circulation also। तो सर्कुलेशन का भी राइट होना चाहिए ना। पब्लिश हो जाना इज नॉट द फंडामेंटल राइट, पब्लिश हो जाने के बाद उसका सर्कुलेशन होना ये इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर रमेश थापर साहब के इस फंडामेंटल राइट को हम सपोर्ट करते हैं। और उस केस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ऑर्डर वायलेशन, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है मद्रास गवर्नमेंट का, वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ द पिटिशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो अंडर आर्टिकल 19(1)(a ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है। तो क्योंकि ये वायलेशन कर रहा है, इस करके हम मद्रास गवर्नमेंट के इस सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पर सेक्शन 9(1)(a मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज सेव्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2। हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते क्योंकि भी पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस का होना जरूरी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। साथ ही में इंपॉर्टेंस क्या है जजमेंट की, इट अपहेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हिच ले द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोगों ने इस क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फाउंडेशन है फ्री प्रेस इन एनी डेमोक्रेसी। हम नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम चाइना नहीं है, या हम ऐसी कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, जैसे एक दो कंट्रीज और भी हैं जहां पर प्रेस जो है वो सरकार के हाथ में है। ठीक, चाइना में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है और शायद क्यूबा में भी है। तो क्यूबा में तो कंप्लीट कम्युनिज्म है वहां पे। सो वहां पर क्योंकि न्यूज़पेपर भी सरकार छापती है, इस करके वही छापती है जो उनको ठीक लगता है। और हम लोगों ने इसको रिसेंट ईयर्स में देखा भी है कि चाइना का न्यूज़पेपर वही छापना चाहता है या लोगों को वही बताना चाहता है जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ठीक है। पर इंडिया क्योंकि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आगे चल के हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो क्योंकि ये फाउंडेशन है फ्री प्रेस, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन। रीजन उसके पीछे, अब आप रिसेंट ईयर्स में आप देखो कि एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में खासतौर के ऊपर, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मोरलेस सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ही कर रही हैं कि आइडियाज एक दूसरे के एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे कम से कम सुन तो लो, हो सकता है कि दूसरा आदमी भी बात ठीक कह रहा हो, बट ये पेशेंस धीरे धीरे डेमोक्रेसी के अंदर खत्म होती जा रही है, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि लोगों के अंदर इम्पेशेंस डेवलप होती जा रही है। दूसरे पॉलिटिकल आइडियाज, इंडिया के पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उससे डिसएग्री होती थी। पूरी दुनिया में ऐसा होता था, इंडिया में भी ऐसा ही होता है और पूरी दुनिया की तरह। बट यहाँ पर एक्सप्रेस करने का आइडिया शायद हम लोग उस मामले में ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाए। शायद हमारे यहाँ पर अपने आइडियाज़ को आप किसी के आइडिया से डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री हो जाने की कंडीशन में उससे डिसएग्री भी हम ठीक से नहीं हो पा रहे। ये रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि शायद नई जनरेशन के अंदर पेशेंस खत्म होती जा रही है। शायद ट्रेंडी पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, शायद ऐसा हो रहा है, बट ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। इट शुड बी अवॉइडेड, ये नहीं होना चाहिए, बट इट स्टिल, है ना। हम लोग केस के ऊपर वापस आते हैं।
सो पॉलिटिकल डिस्कशन इज असेंशियल, होनी चाहिए, खुली पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए। हो सकता है कि एक ही फैमिली के अंदर दो लोग हों जिनकी दो आइडियोलॉजीज हों, और ये नॉर्मली होता भी है डेमोक्रेसीज में। रिसेंट ट्रेंड्स भी हैं कि रिसेंट ईयर्स में भी हम लोगों ने देखा है कि माँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, फादर किसी और को हैं। सिंधिया फैमिली में हम लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा होता है। बट कम से कम ये तो नहीं है खाने की टेबल के ऊपर बैठेंगे तलवारें खींच लेंगे, ये ट्रेंड नहीं, ठीक होना नहीं है, और ये पर चल रहा है। सो फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन शुड बी एसेंशियल, ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और रिसेंट ईयर्स में भी सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि लोगों को अपने राइट एक्सप्रेस करने का राइट है। आप एग्री या डिसएग्री कुछ भी हो सकता है, तो गला फाड़ फाड़ के, आंखें दिखा दिखा के, है ना, तो उसमें भी वही होना है जो हम लोग पोलाइटली डिसएग्री होकर कर सकते हैं कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ये आपकी आइडियोलॉजी है, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री हूं इससे, है ना। सो लिबर्टी ऑफ द प्रेस is an essential part of the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). Next is, so 19(1)(a) के अंदर ये आपका राइट है, और किसी को भी ये राइट कंप्लीटली मिलना चाहिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। असेंशियल है और इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का असेंशियल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, एंड कॉल्ड इट फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सी जजमेंट के अंदर जो प्रेस है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर किया, उसको डिक्लेयर किया। सो उसके बाद देखो कि रिसेंट ईयर्स में, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्योंकि एक ट्रेंड डेवलप हुआ है खासतौर के जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात को खुल के रखने लग गए हैं। ये एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, पर बुरा एस्पेक्ट भी है कि जैसे चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप प्रेस है रिस्ट्रिक्टेड है, जो मीडिया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टिंग बॉडी जरूर है। बट सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि कोई ना कोई बॉडी नहीं है जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, इनके पब्लिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सके, और पीपल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इन सम केसेस वी हैव सीन कि अगर जजमेंट पसंद आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, अगर जजमेंट अपने हिसाब से नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं ना। तो एक रीसेंट ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने भी इसके बारे में यही कहा था, और यही जो एस्पेक्ट है आप देख सकते हैं इसके अंदर जिन्होंने कहा था न्यूज़पेपर के अंदर दिया था। अब इस एक्ट के साथ जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको इस केस से रिलेटेड देखना है, तो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, करते करते आप लोगों को याद हो गया होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 32 क्लॉज 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 32 क्लॉज 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही में आगे चल के श्रेया सिंगल केस हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर आप चाहें तो श्रेया सिंगल केस एक बार पढ़ सकते हैं। आज के सेक्शन में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।